سامعین، یہ مشاعرہ حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارکہ پر پیش منعقد کیا گیا ہے۔ آئیے بابا کے آستانِ عالیہ پہ آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ عروس البلاد سے تشریف لائی ہیں بہت ہی نوجوان شاعرہ جو خود لکھتی ہیں، بہت خوبصورت اسلوب میں پڑھتی ہیں۔ رانا تبسم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ غزل ترنم سے سنیے۔ آج کہاں وہ پہلے جیسی رشتے داری ہوتی ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں مینا کاری ہوتی ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں مینا کاری ہوتی ہے، دنیا سے جانے میں غفلت جان بوجھ کر کرتے ہیں، دنیا سے جانے کی غفلت جان بوجھ کے کرتے ہیں، دنیا سے جانے میں غفلت جان بوجھ کر کرتے ہیں، دنیا سے جانے میں غفلت جان بوجھ کر کرتے ہیں، رات بھائی میں ایسا نہیں کرتا ہے، گھر سے باہر جانے کی کتنی تیاری بھائی بابا رانا جواب دیں۔ گھر سے باہر جانے کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ اور یہ شعر میں تمام حضرات کی نظر کر رہی ہوں ارشاد علی کہ دل کو موہنے والی صورت پر مت اپنا دلوارو، واہ، دل کو موہنے والی صورت پر مت اپنا دلوارو، دل کو موہنے والی صورت پر مت اپنا دلوارو، ڈسنے والی ناگن بھی تو پیاری پیاری ہوتی ہے، ڈسنے والی ناگن بھی تو پیاری پیاری ہوتی ہے، اور چہرہ پڑھنے میں ماہر ہو پڑھ لو ہم سے مت پوچھو، چہرہ پڑھنے میں ماہر ہو پڑھ لو ہم سے مت پوچھو، چہرہ پڑھنے میں ماہر ہو پڑھ لو ہم سے مت پوچھو، ہم کو اپنا حال بتانے میں دشواری ہوتی ہے، تھوڑا زور کرو، زور یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اپنا حال بتانے میں دشواری ہوتی ہے۔ آئیے حیدرآباد کے بہت ہی مشہور طنز نگار جناب وحید بادشاہ قادری سے ان مصروں کے ساتھ آواز دوں کہ بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر، بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر، میں دوستوں کو شعر سنانے میں رہ گیا۔ جناب وحید بادشاہ قادری صاحب سماعت فرمائیے گا کہ تم نے میری وفاؤں کا اچھا صلہ دیا، تم نے میری وفاؤں کا اچھا صلہ دیا، گھر پہ بلا کے بھائی سے جوتے کھلا دیا، گھر پہ بلا کے بھائی سے جوتے کھلا دیا۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ مفلسی میری اس طرح مٹا دو یارو، مفلسی میری اس طرح مٹا دو یارو، مجھ کو داماد منسٹر کا بنا دو یارو، مجھ کو داماد منسٹر کا بنا دو یارو، ڈگریاں میں نے خریدی ہیں بہت ہی مہنگی۔ سماعت فرمائیے گا ارشاد کہ ڈگریاں میں نے خریدی ہیں بہت ہی مہنگی، کچھ نہ کچھ میری تجارت کا صلہ دو یارو، کچھ نہ کچھ میری تجارت کا صلہ دو یارو۔ ایک دو خطات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ ویسے تو والدین کی حسرت نکل گئی، ویسے تو والدین کی حسرت نکل گئی،
शादी की दाल मेरी बहरहाल गल गई, शादी की दाल मेरी बहरहाल गल गई, यारो उठा के लाया बला को मैं जिस घड़ी, वो रात टल सकी ना मगर नाफ टल गई, वाह वाह वो रात टल सकी ना मगर नाफ टल गई। शुक्रिया। और एक खता देखिएगा कि ना कटने का ही गम होता, ना लड़ने की ज़रूरत थी, क्या बात। ना कटने का ही गम होता, ना लड़ने की ज़रूरत थी, पतंग ये मेरी शादी की अटक जाती तो अच्छा था, पतंग ये मेरी शादी की अटक जाती तो अच्छा था, खुदा गारत करे उसको बताया जिसने घर मेरा, मुशाता घर के पास आकर भटक जाती तो अच्छा था, मुशाता घर के पास आकर भटक जाती तो अच्छा था। हजरत एक खता कौमी जहदी के नाम समात फरमाइएगा, आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ इस खते पर मैं, कि ऐ खुदा इरशाद अली, ऐसा मौजज़ा कर दे, ए खुदा ऐसा मौजज़ा कर, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, एड्स में उनको मुब्तला कर दे। नहीं भाई, इनायत की। अभी हम लोग खाने के लिए मोहतरमा डॉक्टर के साहबा के मकान गए थे, तो वहाँ पर जो चाय पिलाई गई, उस चाय पीने के बाद जो मेरा हाल है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए। इरशाद अली। सुनिए बेटे सुनिए जरा। वो चाय लाए मुझको पिलाए, ना जाने उसमें क्या क्या मिलाए, वो चाय लाए मुझको पिलाए, ना जाने उसमें क्या क्या मिलाए, हाथ में मेरे पानी का लोटा है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। और एक पैरोडी का एक बंद देखिएगा। इरशाद एक अली। साहब अपनी बीवी से इस तरह से मुखातिब हैं, हो गया हूँ बच्चों से बेजार मैमूना, हो गया हूँ बच्चों से बेजार मैमूना, चाटती हो फिर से क्यों अचार मैमूना, चाटती हो फिर से क्यों अचार मैमूना, फैमिली प्लानिंग का मौका है सुनो, हर साल अब तुम नया सूटर ना बुनो, दिख रही हो मुझको तुम भी चार मैमूना, चाटती हो फिर से क्यों अचार मैमूना, चाटती हो फिर से क्यों अचार मैमूना। एक लड़की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, एक बेकार किस्म का लड़का उसे कई दिनों से फॉलो कर रहा, जब अकेली में उसे मिला तो कुछ इस तरह से मुखातिब समात फरमाइएगा। इनायत। अगर तुम पट जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, नहीं बात। अगर तुम पट जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, यहाँ तक अम्मा बाबा का ठिकाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम पट जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। बंद देखिएगा। इरशाद अली। जो तुम ऑफिस को जाओगी तो बच्चे हम संभालेंगे, जो तुम ऑफिस को जाओगी तो बच्चे हम संभालेंगे, जो कपड़े रख के जाओगी
उसे धोकर खंगालेंगे। अगर गुस्सा जो आ जाए पकाना छोड़ देंगे हम। अगर गुस्सा वही बात है, जो सब आ जवाब है। जाए पकाना छोड़ देंगे हम। यहाँ तक अम्मा बाबा का ठिकाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम पट जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। आइए जमालियात और हालियात का इम्तिजाज जनाब ताहिर फराज से मुलाकात करें। अर्ज करता हूँ कि पीली शाखें सूखे पत्ते कुछ रंग शजर बन जाते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। बिल्कुल सही, वाह वाह वाह। पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। चलते हैं सभी एक साथ मगर मंजिल पे पहुंचने से पहले कुछ रहनुमा बन जाते हैं, कुछ गर्दे सफर। भाई जवाब नहीं है शेर का। वाह वाह ताहिर, सभी एक साथ मगर बहुत अच्छा है ताहिर। मंजिल पे पहुंचने से पहले कुछ रहनुमा बन जाते हैं, कुछ गर्दे सफर बन जाते हैं। सफर बन जाते हैं। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ। हाँ, जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ। सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़मा तर बन जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ। सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़मा तर भाई बन जवाब जाते नहीं है। हैं। वो साफ अगर आईना तो पैकर की वजाहत होती है। जब सामना तुमसे होता है हम और संवर बन जाते हैं। बहुत अच्छा है। वो साफ अगर आईना तो पैकर की वजाहत होती है। जब सामना तुमसे होता है हम और संवर बन जाते हैं। किरदार हैं जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। किरदार हैं जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। उन लोगों के दिल धीरे धीरे अल्लाह के घर बन जाते हैं। वाह साहब वाह। उन लोगों के दिल धीरे धीरे अल्लाह के घर बन जाते। एक शेर इस गजल में है जो मैं बड़े कर्व से पढ़ता हूँ और आज भी मैं हाजिर करना चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत ही अजीब सी दुनिया है ये स्टेज की दुनिया। जब तक चेहरे में चमक आवाज में जान है तब तक सब याद रखते हैं, सब वाह वाह करते हैं। लेकिन जरा सा भी मामला इधर उधर हो तो कितनी जल्दी फरामोश। पूरी एक सफ है, पूरी एक लाइन है जो देखें अगर आप गौर करें कैसे कैसे हमारे स्टेज की जो शहंशाह थे आज हमारे दरमियान नहीं रहे। एक शेर में पढ़ता हूँ कि रखते हैं गजल कहने का हुनर। किरदार हैं जिनके गंगा जल और खल्क की खिदमत फितरत है। उन लोगों के दिल धीरे धीरे अल्लाह के घर बन जाते हैं। रखते हैं गजल कहने का हुनर, करते हैं सफर जो शाम व सहर। रखते हैं गजल कहने का हुनर, करते हैं सफर जो शाम व सहर। वो अहले नजर नामी शायर एक शब की खबर बन जाते हैं। वाह भाई वाह। वो अहले नजर नामी शायर एक शब की खबर बन जाती है। आपने एक माहौल बनाया, मैं 4 मिसरे से आपकी तवज्जो करता हूँ। इरशाद है। आँखों में आंसू की जगह अब रहेगा कौन। आहा, आँखों में आंसू की जगह अब रहेगा कौन। आँखों में आंसू की जगह अब रहेगा कौन। इस घर में तेरे बाद बता दे बसेगा कौन। वाह। इस घर में तेरे बाद बता दे बसेगा कौन। अब रात बीतती है चलो घर की राह ले। भाई जवाब नहीं है ताहिर अब फराज। रात बीतती है चलो घर की राह ले। चलो घर की राह ले। लेकिन वहाँ
वाह बड़ी बात है। लेकिन वहाँ भी अपने अलावा मिलेगा कौन, आंखों में आंसुओं की जगह अब रहे। क्या कहने ताहिर बाबा। बहुत शुक्रिया। एक गजल के लिए मुझे हुक्म भी है, फरमाइश भी हो रही है। जब कभी बहुत अच्छे, बहुत तालियां बजा दीजिए दोस्तों, आपने फरमाइश की है इस गजल के लिए। वक्त पर बोलना, आहाहाहा, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, कभी बोलना, वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। भाई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है ताहिर फराज का। मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, मुख्तसर बोलना, जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, डाल देगा हलाकत में एक दिन डाल तुझे। देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ताहिर फराज। ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना, पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, आहा, पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, साथ चल के परख, फिर मुझे हम सफर बोलना, सफर बोलना। सुभान अल्लाह। फिर मुझे हम सफर बोलना, उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया, उम्र भर को मुझे बेसुरा कर उम्र गया, भर को मुझे बेसदा कर गया, बेसदा कर गया, तेरा एक बार मुंह फेर कर सुभान अल्लाह। तेरा एक नहीं बार बाबा। मुंह फेर कर बोलना, मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, मेरी खाना बदोशी से पूछे मेरी कोई, खाना बदोशी से पूछे कोई, कितना मुश्किल है रस्ते को घर वाह बोलना, वाह वाह भाई, बहुत खूब, कितना मुश्किल है बहुत खूब ताहिर। रस्ते को घर बोलना, क्यों है खामोश सोने की चिड़िया बता, क्यों है खामोश सोने की क्यों है चिड़िया बता, खामोश सोने की चिड़िया बता, लग गई तुझको किसकी नजर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुकर्रमी सामीन, आइए गज़ल समाअत करते हैं। गज़ल जिसे वली दक्नी, जिसके बादशाह हैं और जिन्होंने गज़ल को एक मकाम दिया और गज़ल को एक आगाज़ दिया और आवाज़ जरस दी, उनका नाम है वली दक्नी। इसी दक्कन का वो शख्स था, हज़रत वली दक्नी। मुकर्रमी सामीन, गज़ल की गुफ्तगू करें। मैं आपके रूबरू गज़ल का बहुत अच्छा शायर पेश करना चाहता हूँ। गज़ल वो गुल अज़ार जिसके दीदार से अहले कलम के दिल धड़कते हैं। गज़ल वो नसरीन और नस्तरन जिसकी जुल्फ़ अंबरी से ख़यालात की वादियाँ महकती हैं। तो आप समाअत अब करेंगे गज़ल के शायर दारुल सुरूर से तशरीफ़ लाए हैं नईम अख्तर कादमी साहब। तालियों के दरमियान दोस्तों, जिनकी गज़ल उनके तरन्नुम की चांदनी में ऐसे चमकती है जैसे ताजमहल, तशरीफ़ ला रहे हैं आपके रूबरू जनाब नईम अख्तर कादमी। देखिए, गज़ल से पेशतर मैं मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इरशाद अली। मुलाहिज़ा फरमाएं कि जो बेदारी के पल में सो रहा है, क्या बात है सर। जो बेदारी के पल में सो रहा है, वो मुस्तकबिल को अपने खो रहा है। जो बेदारी के पल में सो रहा है, वो मुस्तकबिल को अपने खो रहा है। थोड़ा सा हाँ दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाएं, अर्ज किया है कि जो बेदारी के पल में सो रहा है, बहुत अच्छे नहीं, वो मुस्तकबिल को अपने खो रहा है। वाह। और ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, वाह सर। ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, जो मुझको जख्म देकर रो रहा है। ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, वाह भाई वाह। ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, जो मुझको जख्म देकर रो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन गिरामी। पत्थर का जिक्र हुआ, मैं एक आईना, शुक्रिया सर, बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है आपने। ये पत्थर तो बड़ा हसास निकला, आहा, जो मुझको जख्म देकर रो रहा है। वाह साहब। जो मुझको जख्म देकर रो रहा है। ये लहजा क्या तकब्बुर से भरा लहजा नहीं लगता, ये लहजा क्या तकब्बुर से भरा लहजा नहीं लगता। किसी कतरे का ये कहना मुझे दरिया नहीं भाई लगता। वाह, वाह भाई वाह। किसी कतरे का ये कहना मुझे दरिया नहीं लगता, बज़ों में तमकिना तौरों को जो बर्बाद करता है। वाह। बज़ों में तमकिना तौरों को जो बर्बाद करता है, उसे भी खत्म होने में बहुत अरसा बहुत नहीं अच्छा, लगता। बहुत अच्छा। बज़ों में तमकिना तौरों को जो बर्बाद करता है, उसे भी खत्म होने में बहुत अरसा नहीं लगता। उसे भी खत्म होने में बहुत अरसा नहीं लगता। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसे दानिस्ता पाला है सियासी आस्तीनों ने। इसे दानिस्ता इसे दानिस्ता पाला है सियासी आस्तीनों ने। ये जहरीला किसी जंगल का बाशिंदा नहीं। बेशक, वाह भाई वाह। भाई नईम भाई वाह वाह। शेर पढ़े। इसे दानिस्ता पाला है सियासी आस्तीनों ने। इसे दानिस्ता पाला है सियासी आस्तीनों ने। ये जहरीला किसी जंगल का बाशिंदा नहीं लगता।
اور دلوں کے فاصلے کیا ختم ہوں گے ہاتھ ملنے سے. واہ بھائی واہ. دلوں کے فاصلے کیا ختم ہوں گے ہاتھ ملنے سے. تمہیں لگتا ہو ایسا پر ہمیں ایسا نہیں لگتا. واہ بھائی نہیں. دلوں کے فاصلے کیا ختم ہوں گے ہاتھ ملنے سے. تمہیں لگتا ہو ایسا پر ہمیں ایسا نہیں لگتا. ایک غزل کے 2-4 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. مطلب پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی ترنم سے پیش کر رہا ہوں, ترنم سے پیش کر رہا ہوں غزل, ملاحظہ فرمائیں مطلب. نہ پتھروں کی دھمکیوں سے چپ رہے گا آئینہ. نہ پتھروں کی دھمکیوں سے چپ رہے گا آئینہ. نہ پتھروں کی دھمکیوں سے چپ رہے گا آئینہ. اگرچہ ٹوٹ جائے گا پر سچ کہے گا آئینہ. واہ بھائی واہ. اگرچہ ٹوٹ جائے گا پر سچ کہے گا آئینہ. پر سچ کہے گا آئینہ. اور بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں. فریبیوں کے میر تم, فسادیوں کے پیر تم. اگرچہ ٹوٹ جائے گا پر سچ کہے گا آئینہ. فسادیوں کے میر تم, فریبیوں کے پیر تم. فسادیوں کے میر تم, فریبیوں کے پیر تم. فسادیوں کے میر تم, فسادیوں کے میر تم. فریبیوں کے پیر تم. تمہیں تو اور بھی کھری کھری کہے گا. تمہیں تو اور بھی کھری کھری کہے گا آئینہ. اگرچہ ٹوٹ جائے گا پر سچ کہے گا آئینہ. ابھی بھی وقت ہے تم اپنے آپ کو سنوار لو. ابھی بھی وقت ہے تم اپنے آپ کو سنوار لو. اپنے آپ کو سنوار لو. ابھی بھی وقت ہے تم اپنے آپ کو سنوار لو. یہ بات اتنے پیار سے نقل نہیں ہے. بھائی کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ بات اتنے پیار سے نقل کہے گا آئینہ. ابھی بھی وقت ہے تم اپنے آپ کو سنوار لو. یہ بات اتنے پیار سے نقل کہے گا آئینہ. نقل کہے گا آئینہ. نہیں مگر تیری زبان سچ کی ترجمہ رہی. نہیں مگر تیری زبان